آغاز میں خبر یہ ہے کہ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت قطعی طور پر ناقابل تسخیر اور مقدس ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کی طرف سے اسے پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست پوری طاقت سے جواب دے گی۔ مواصلاتی چینلز کو علاقائی امن کے وسیع تر مفاد میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ دہشت گردی کی لعنت سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سلامتی کمیٹی کے شرکاء کا عزم۔ نگران وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمسایوں سمیت تمام ممالک سے دوستی چاہتا ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت سے بھی ایسے ہی جذبے کا اظہار چاہتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے اجلاس۔ ایران کے اندر غیر حکومتی جگہوں پر مقیم پاکستانی نژاد بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن مارک بر سرمچار پر غور۔ ایران سے تعلقات کی بحالی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دفاع، خارجہ امور، خزانہ اور اطلاعات کے نگران وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، بحری، بحری اور فضائی افواج کے چیفز، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت قطعی طور پر ناقابل تسخیر اور مقدس ہے۔ کسی کی طرف سے کسی بھی بہانے اسے پامال کرنے کی کوشش کا ریاست کی پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مواصلاتی چینلز کو علاقائی امن کے وسیع تر مفاد میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ دہشت گردی کی لعنت سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بعد ازاں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان امن پسند ملک اور ہمسایوں سمیت تمام ممالک سے دوستی چاہتا ہے اور ایرانی حکومت سے بھی ایسے ہی جذبے کا اظہار چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک ایران وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے کشیدگی اور تناؤ میں کمی لانے، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تناؤ کی صورتحال کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی اور تناؤ میں کمی لانے، سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق۔ تناؤ کی صورتحال کے بعد پاکستان اور ایران کے مابین سفارتی سطح پر مثبت پیغامات کا بھی تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کے دوران نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان اور ایران کے مابین باہمی امداد اور تعاون کی روح پر مبنی تمام مسائل پر کام کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور سیکیورٹی کے معاملات پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق فریقین نے ایک دوسرے کے کور ایشوز اور درپیش چیلنجز کو مشترکہ حکمت عملی سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ایران کے لیے پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کے ٹویٹ کا عکس جاری کر دیا۔ پیغام میں سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران ہمیشہ ہر طرح کی صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ خطے کے پیچیدہ ماحول میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون اور باہمی اعتماد امن و استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے وزارت خارجہ کے ڈی جی ایران رحیم حیات قریشی کے ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی کے ٹویٹ کا عکس بھی جاری کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ رحیم حیات قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے آپس میں برادرانہ تعلقات ہیں، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور یہ یقینی بنائیں گے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ لاہور چڑیا گھر کے دورے کے موقع پر محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ تمام امیدوار آزادانہ طریقے سے انتخابی مہم چلائیں جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ امیدواروں کو ہراساں کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ نیوٹرل ہے، شکایات پر نوٹس لیا جائے گا۔ بیوروکریسی 16 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ کوشش ہے کہ تمام منصوبے مکمل کر کے جائیں۔ کسی نے ہمارے اداروں کی طرف دیکھا تو اس کا حال 9 مئی والا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیاست میں اچھا برا وقت آتا ہے، مسلم لیگ نون کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے خانے وال میں جلسے سے خطاب۔ کہا کہ عوام جانتے ہیں ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے۔ میدان میں نون لیگ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے ہیں۔ ہم ہر وقت گرفتاری کے لیے تیار رہتے ہیں۔ 2018 میں دھاندلی سے نون لیگ کو الیکشن ہرایا گیا۔ آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جو نوجوان جیلوں میں ہیں ان کو حملہ کرنے کی ترغیب تم نے دی تھی۔ سب سے بڑی شاباش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر نواز شریف آج واپس آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خانے وال میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ سیاست میں
मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। 2018 में भी जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को, खानेवाल ने तब भी खानेवाल में शेर के अलावा किसी को घुसने नहीं दिया। महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ? मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। इंतखाबी मंशूर माहिरीन की 36 कमेटियों की तजावीज़ और इक़दाम पर मुश्तमिल है। ये जामी मंशूर आवाम से क्या किया गया मुस्लिम लीग नून का पहला बाज़ाब्ता अहदनामा होगा। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को नवाज दो, 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं, नून लीग के मंशूर का बयानिया होगा। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में अवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल। इक़्तिदार संभालने के फौरी बाद बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबों का ऐलान भी मुतवक्के। मंशूर में नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मराहत दिए जाने का इम्कान है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और सेहत के हवाले से इक़दाम मंशूर का लाजमी हिस्सा। मुफ्त इलाज की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो, बीमारियों से बचाव, माँ बच्चे की सेहत के प्रोग्राम और तिब्बी अमले के लिए मुसलसल रिफ्रेशर कोर्सेज का इनाकाद मंशूर का हिस्सा होंगे। खवातीन को माशी मैदान में खुद मुख्तार बनाने के लिए भी कई इकदाम मंशूर में शामिल। लाइव स्टॉक ज़राअत को मंशूर में बुनियादी हैसियत दी गई है। किसानों की तरक्की मुल्क की तरक्की करार। हाइब्रिड बीज, जदीद तरीन मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लाने के इकदाम किए जाना भी पार्टी मंशूर का हिस्सा है। आज़ाद खारिजा पॉलिसी को पार्टी मंशूर में बुनियादी हैसियत हासिल होगी। मुल्क की खुद मुख्तारी को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना भी मंशूर में शामिल होगा। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर 27 जनवरी को लाहौर में मुनक़दा तकरीब में पेश किया जाएगा। उर्दू चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लियाकतपुर में खिताब किया और कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन अपने मंशूर पर लड़ रही है। अगर आपने मुझे मंतखब किया तो मैं अपने मंशूर के 10 निकात पर अमल दरामद करूँगा। वफाक की 17 वज़ारतें ख़त्म करके 300 अरब रुपये आवाम पर खर्च करूँगा। हम पाकिस्तान के आवाम की आमदनी को दुगना कर देंगे। गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लेकर आएंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटा प्रोग्राम शुरू करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे और जीत तीर की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन मंशूर पे लड़ रही है और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है। अगर हमने इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। हमारा कोशिश होगा कि इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी को दुगनी कर दे। दूसरा जो हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत में आके जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खबर शामिल करेंगे अदालती उमूर से। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में बानी PTI और बुश हबीबी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत की। तोशाखाना रेफरेंस में मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद कर दिया गया, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी।
इस्लामाबाद से रिपोर्ट। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। तोशाखाना रेफरेंस में इस्तगासा के मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकलाए सफाई तब्दील। मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के मौके पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एक गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद किया गया। मजीद गवाहों के बयानात हफ्ते के रोज कलमबंद किए जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की जानिब से वकला की तब्दीली की दरखास्त दायर की गई। बताया गया कि बानी पीटीआई की नई वकला टीम में बैरिस्टर अली जफर, सिकंदर जुल्करनैन और उस्मान गुल शामिल हैं। उस्मान गुल एडवोकेट ने कहा कि नए वकील अली जफर मौजूद नहीं है, इसलिए फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इस मौके पर बानी पीटीआई रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तलाहात वकील ही समझा सकते हैं। वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल नहीं करता। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में अहम पेशरफ। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान को चालान की कॉपियाँ तकसीम कर दी गईं। एंटी करप्शन अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीक मुल्ज़िमान को भी तलब कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नोमान नूर। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमा में पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश किया। मुल्जिमान को गुजरांवाला जेल से एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। मुल्जिमान को चालान समेत तमाम कागजात की कॉपीज तकसीम की गईं। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली में तहरीरी इम्तिहान में फेल होने वालों को ग्रेड 17 में मुलाजमतें दी गईं। अदालत ने शरीक मुल्जिमान समेत दीगर को 25 जनवरी को तलब कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी और दीगर के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने रात देर तक कैफे खुले रखने पर भारी जुर्माने करने का हुक्म दे दिया है। तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफे को सरबमोहर कर दिया जाएगा। लेस्को एहलकारों को दरख्तों की काट छांट से कबल PHA को मुतला करने की भी हिदायत की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। स्मोक के तदारुक का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का रात देर तक कैफे खुले रखने पर भारी जुर्माने करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की स्मोक से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने अदालत को बताया कि जौहर टाउन में रात देर तक कैफे खुले रखने पर मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई नहीं कर रहे। निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर का जवाब होता है कि इलेक्शन की ड्यूटी में मसरूफ हैं। इस पर अदालत ने रात 10 बजे कैफे बंद न करने पर पहली बार खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। दूसरी खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए, जबकि तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफे को मुकम्मल सरबमोहर करने का भी कह दिया। PHA के वकील ने बताया कि छतों पर पौधे लगाने बारे माहिरीन से मुशावरत हुई है। उन्होंने छतों के लिए मखसूस मिट्टी का बताया, जिस पर मजीद मुशावरत जारी है। दरखास्त गुजार के वकील ने तजवीज़ दी कि PHA दरख्त लगाने वाले शहरियों को इनाम देने का ऐलान करे। अदालत ने लेस्को एहलकारों को दरख्त की काट छांट से कबल PHA को मुतला करने की भी हिदायत की और समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। अवामी मसाइल की बात की जाए तो मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया के दाम मजीद बढ़ गए हैं। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 44.64% की सतह पर पहुँच गई है। रवा हफ्ते भी महंगाई की शरह में 0.34% का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर अली राना। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.34% का मजीद इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 44.64% की बुलंद सतह पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी, 8 की कीमतों में कमी हुई। मुल्क में प्याज की कीमतें बेकाबू, जो 230 रुपए फी किलो तक रिकॉर्ड की गयी। रवा हफ्ते प्याज की फी किलो कीमत में 18 रुपए 31 पैसे का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 10 रुपए 78 पैसे फी किलो महंगे हुए। कीमत 143 रुपए से बढ़कर 154 रुपए तक पहुंच गई। रवा हफ्ते मुर्गी की फी किलो कीमत 9 रुपए 86 पैसे बढ़ी, जबकि अंडे फी दर्जन 7 रुपए 87 पैसे महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, बीफ, जलाने की लकड़ी भी महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान आलू, चीनी, पेट्रोल समेत 8 अशिया की कीमतें कम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए तक और चीनी की फी किलो कीमत 1 रुपए 32 पैसे तक कम हुई। रवा हफ्ते ब्रेड, ताज़ा दूध, खुश्क दूध समेत 21 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे।